So, good morning. It's my pleasure to welcome all of you to the first session of the fifth day of the annual Faculty Development Program titled Post COVID 19 Media, Entertainment, and Digital Consumption, organized by VSTMC's External Research Committee. The theme for today's program is Production Aesthetics for Different Film Types. I'm Saloni Bhardwaj, and on behalf of the External Research Committee, I welcome all the participants and our special guest for the first session, Mr. Vijay Varma. I also welcome our chairperson, Professor Siddharth Mishra, and we'll be joined by our dean, Professor Dr. Charulata Singh, shortly. The theme on which Mr. Vijay Varma is going to be speaking today is technological intervention in filmmaking. Mr. Vijay Varma is the managing director of Post House, one of the biggest production house in the Bollywood industry. So it is an interesting story to start with, because in the beginning, as a humble music composer, he was happy in his world of music, making a mark in the world of cinema as a musician. But for him, something was still amiss. He wanted to do something more than what he was doing already. In his own words, he had an excessive flow of energy, and he wanted to be that energy to be channelized. And then he met a few friends who were strange, yet fulfilling to know they are existing on the same planet, even just right across the road, who think and feel just like him. For him, age did not matter, and he hit it off right away as they all had the same passion. A composer, a technical expert, an event organizer, a writer, and all loved, all of them, they loved the big screen and the dark theaters. And they were dying to participate more in the changing face of Indian cinema. So his recording studio was ready, and his friend wanted to lend his technical expertise by creating a post studio of his own. Another was writing screenplays and planning to direct films. So all of them together formed their first company, Poet Lovers and Lunatics Motion Pictures Private Limited, and as its first venture, created the brand Post House, a first of its kind one-stop solution to the post-production needs of national as well as international projects. Any filmmaker or any person associated with cinema will never wish to leave his studio once he or she steps into it. That is how passionate he and his team are all about work and dreams. And soon Mr. Varma and his team started embarking on the next journey towards production of cinema of the best quality. He and his team worked around the clock to bring out the highest standards in both post and pre-production. Mr. Varma realized that he was destined to be this, and he also studied cost accountancy along with music. His credential needed to be exploited, and so he became an entrepreneur of sorts, and he was handling everything on his own. So we welcome you at the faculty development session at WIPS to share with us your valuable expertise and the changing world of cinema and the OTT industry. So. Thank you so much. So I'm obliged that you people are having me in this important session. I thank to Mr. Siddharth Mishra, Charulata Singh ma'am, Praveen ji for coordinating all these days with me. I was not available very on regular basis, but we were in touch on phone, and finally we are here in this session. So I would like to request one thing, that my language of expression is Hindi. Mostly I'll speak in Hindi. I hope it is not a problem for you, all Indians, Hindustani. No, not at all, not at all. We want you to speak in the language of your expression. Yeah. So मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा. See, technical informations and knowledge can't be shared in 40-minute session. Classes लेते हैं आप लोग. तो बेसिकली मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि मैं खुद भी एक सिनेमा का विद्यार्थी हूँ अभी भी, और आप लोग सिनेमा के विद्यार्थी तैयार करते हैं अपने यूनिवर्सिटीज में. आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वही हमारे सिनेमा वर्ल्ड का फ्यूचर है. हमारा पूरा ऑडियो विजुअल क्वालिटी
उन सब लोगों पे डिपेंड करता है जो आपके पढ़ाए हुए हैं और आपके यहाँ से हमारे यहाँ आते हैं काम करने। जो किताबों की बातें हैं और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने वो रास्ता तय किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इस सेशन में हम लोगों को उस बात पे ज्यादा बात करनी है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल नॉलेजेज यहाँ इन द मार्केट अचीव किया है और सीखा है। डे बाय डे वी आर स्टिल लर्निंग बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा ही अपग्रेड होना आपसे चाहता है कि आप अपग्रेड होते रहें एवरी डे इनफैक्ट। और हम लोग खास करके उस जनरेशन से हैं जब हमने लैंडलाइन से, पेजर से, मोबाइल से यहाँ तक का सफर देखा है एंड डेस्कटॉप से एंड्रॉयड एंड इन सब चीजों को आते हुए देखा है। सो हमारा जनरेशन जो है मेरे ख्याल से हम लोगों ने सबसे ज्यादा चेंजेस देखे हैं। सो एंड वी आर इन द हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल दोज चेंजेस फॉर द बेटरमेंट। जो सबसे बड़ी बात है, एक तो डिजिटाइजेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजिटाइजेशन जो है वो कोविड की वजह से आया है। डिजिटल जो है वो तो आ चुका था पहले ही। इनफैक्ट एनालॉग से डिजिटल का जो चेंज था वो काफी सालों पहले ही आ चुका। जहां हम लोग नेगेटिव पे शूट करते थे वो डिजिटल कैमरा जाने लगे, 2K कैमरा जाए, फिर अब तो 4K एंड 8K कैप्चर्स होने लगे हैं। साउंड में भी जहां हम लोग टेप्स पे, मैग्नेटिक टेप्स पे रिकॉर्ड करते थे, वहाँ अब हम लोग जो है वो कंप्लीटली डिजिटल रिकॉर्ड करने लगे हैं। एक समय था जब ट्रैक्स की लिमिटेशंस होती थी, सिर्फ 2 ट्रैक होते थे, फिर 4 ट्रैक हुए मैग्नेटिक पे। नाउ वी हैव मल्टीपल ट्रैक्स, आई मीन एज मेनी ट्रैक्स वी वांट वी कैन हैव ऑन डिजिटल। बट इसके साथ साथ में मी बीइंग a very a person who actually appreciates creativity more than technology। और मेरे लिए हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं ना ऑडियो विजुअल में मीडियम में, लोग साउंड के स्टूडेंट हो या वीएफएक्स के हो, एनिमेशन के हो, डीआई कलरिंग के हो, जो भी माध्यम है, ये सब हमारे को मदद करते हैं एक स्टोरी टेलर की टीम बनाने में। स्टोरी टेलर से मेरा मतलब है डायरेक्टर की टीम बनाने में। सो अ डायरेक्टर नीड्स ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सपर्टीज जो हमारे इंस्टीट्यूट से, आपके इंस्टीट्यूट से निकल के यहाँ लोग आते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं और एक डायरेक्टर को हेल्प करते हैं उसकी स्टोरी टेलिंग में। आप सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। मुझे एक मार्टिन स्कॉर्सेसी का की लाइफ का पहला इंटरव्यू जो ऑस्कर के स्टेज पे उन्होंने दिया था, वो याद आता है। सिद्धार्थ सर, मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहूंगा जरूर। मार्टिन स्कॉर्सेसी को जब पहली बार ऑस्कर मिला, he was not a filmmaker, he was not a trained filmmaker। सत्यजीत रे की पॉथेर पांचाली को देखने के बाद पहली बार उनके जहन में आया कि मुझे भी फिल्म मेकर बनना है। बिफोर दैट ही वाज अ क्लर्क। तो जब पहली फिल्म का में ही उनको ऑस्कर मिला तो स्टेज पे जाके उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था। आई वुड लाइक टू शेयर दैट इंटरव्यू विद यू। कि उनको पूछा, उन्होंने कहा कि भाई मैं शूट कर रहा था अपनी फिल्म, तो मेरे पिताजी मेरे सेट पे आए थे और उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, तो तुम क्या कैमरा करते हो? उन्होंने कहा नहीं, कैमरा तो ये जो सामने कैमरामैन है वो करते हैं। उनको पूछा तुम क्या एडिट करते हो? बोला नहीं, एडिट तो ये जो मॉनिटर लेके बैठे हैं वो करते हैं। अच्छा तुम राइटर हो? कहा नहीं मैं राइटर नहीं, राइटर तो मैंने मिलके किसी के साथ लिखा, राइटर इज समवन एल्स। उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करते हो? कहा नहीं एक्टिंग भी नहीं करता मैं। एक एक करके उन्होंने जितने लोग वहां थे सबके सबके प्रोफेशन के बारे में से रिलेटेड उन्होंने अपने बेटे को पूछा कि क्या तुम ये करते हो? मार्टिन स्कॉर्सेसी कहा नहीं मैं ये सब नहीं करता। फिर उन्होंने कहा तुमको अवार्ड किस बात का मिला है? तो इन्होंने कहा कि मैं इन सबको एक साथ इकट्ठा करता हूँ और मेरी जहन में जो कहानी है वो कहने की कोशिश करता हूँ। सो मेरा ख्याल है और बहुत स्ट्रिक्टली मेरा ये मानना है, सीरियसली मेरा ये मानना है कि हम वो सारे लोग जो किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो लोग इस वर्ल्ड में हमारे आके हमारे देश की और सिनेमा वर्ल्ड को बेटर करने की कोशिश में अपना योगदान देंगे, उन सबको वो सब लोग जो है हम किसी एक कहानीकार की टीम का हिस्सा बनते हैं। धीरे धीरे वो एक एक डिपार्टमेंट से होते हुए at the end of the day they become a storyteller themselves, they become a director।
ये इस तरह से एक जर्नी होती है। लाइक इफ आई स्टार्टेड एज अ म्यूजिशियन, सो मुझे लगता था मैं अपनी कहानी जो कहना चाहता था वो 2.5-3 मिनट 4 मिनट के गाने में कहना चाहता था। मैंने कहा वो उसको ट्यून में कहा, तरन्नुम में कहा, फिर लगा कि नहीं अभी पोएट्री हो गई, थोड़ी प्रोज की बात करें। प्रोज में कहने की कोशिश करना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मेरी अभी कुछ बुक्स आई हैं, आई लेट यू नो दैट। So now we are working on the on some web series, and I'm trying to be a director, a storyteller myself. So ये पूरी जर्नी जो है एक-एक डिपार्टमेंट में होके निकलती है। एज एन इंस्टीट्यूट मैं ये बार-बार बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ मैं उन सब लोगों से आज मुखातिब हूँ, वो जो लोग स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पॉलिश करके हमारे वर्ल्ड में भेजते हैं कि जाओ सिनेमा की दुनिया को और बेहतर करो, इनकी स्टोरी टेलिंग को, इनकी ऑडियो क्वालिटी को, इनकी विजुअल क्वालिटी को बेटर करो। This is the target I think we all are trying to achieve. So उन सबको एक पूरी फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल जर्नी से गुजारना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक पूरा प्रोसेस फ्लो बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या करते हैं। हम लोग शूट्स में शूट के बाद हमारा काम शुरू होता है टेक्निकल लोगों का, शूट के पहले भी कुछ टेक्निकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। So, if you allow me to say the whole process flow, I would like to explain that. कि पहले फिल्म मेकिंग में या कोई भी ऑडियो विजुअल जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, डॉक्यू फीचर हो, कोई वेब सीरीज हो, कोई फिल्म हो, कोई टेलीविजन सीरियल हो, सब में स्टोरी टेलिंग होती है। सबसे पहले एक कहानी लिखी जाती है। उस कहानी के हिसाब से उसमें जो भी पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके सुटेबल फेसेज के हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स चुने जाते हैं। उसके बाद से ये सारी डिस्कशंस जो है असिस्टेंट डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स एंड वीएफएक्स टीम के बीच में शुरू होती है। जैसे अगर कोई एक कहानी है जिसमें कोई एक फाइट सीक्वेंस होना है या किसी को छत से कूदना है, किसी को एक आग लगाना है उनके शरीर में, ये सारी चीजें हम लोग हमारे यहाँ से वीएफएक्स सुपरवाइजर जाते हैं। दे डिस्कस विद द डायरेक्टर हाउ टू शूट इट। इसमें हम कितना क्रोमा पे शूट करेंगे, कितना हम लाइव शूट कर पाएंगे, एक्टर कितना अलाउ करता है शूट करना। कुछ एक्टर्स जो है वो कहते हैं हमारे डुप्लीकेट को लेके शूट करो, कुछ एक्टर्स जो है वो दे आर कैपेबल इनफ टू डू द फाइट सीक्वेंसेज एंड अदर रिस्की सीन्स आल्सो, सो दे डू दैट। सो ये वीएफएक्स वाले लोग फिर उनको गाइड करते हैं, बताते हैं कि सर ये चीजें आपको ऐसे शूट करनी है। आफ्टर द शूट फिनिशेज वो वीएफएक्स वालों की जिम्मेदारी होती है कि भाई आपने जैसे कहा था वैसे हमने शूट किया, अब आप इसको एग्जीक्यूट करके गिव मी द फाइनल आउटपुट। वहाँ वीएफएक्स वालों का काम होता है। उसके बाद शूट पे जो है कैमरामैन, फोकस पुलर, ये सारे लोग होते हैं। और वहाँ पे जैसे फोकस पुलर एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर वो कहीं पे भी फॉल्टर करे तो हमारा कोई एक सीन, वो पर्टिकुलर सीन आउट ऑफ फोकस हो सकता है। एक क्लैपमैन जो है, जो बिल्कुल ही लास्ट कड़ी होता है डायरेक्टर्स की टीम की, अगर वो जरा सा भी कुछ गड़बड़ कर दे, आपका क्लैप टाइम पे नहीं लगा तो एडिटर को मैच करने में दिक्कत आती है। कंटिन्यूटी नोट करने वाला बंदा, जो कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है जैसे कल एक शूट हुआ था, सेम सीन में आपने ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनी थी, आज वो सीन कंटिन्यू हो रहा है, वो ग्रीन कलर की चूड़ियां 6 थी या 8 थी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाला बंदा नोट करता है, सो दैट देखने वाले को ये जर्क ना है कि भाई कल जो ये 6 चूड़ियां इन्होंने पहनी थी ग्रीन कलर की, आज 8 कैसे हो गई। इस तरह की छोटी-छोटी चीजें ध्यान रखना जरूरी होती हैं। और फिर हम लोग शूट करके फिनिश करते हैं, जहां हमारा एक आउटपुट समझिए 2 घंटे की फिल्म का होता है। वो 2 घंटे की फिल्म के लिए हमारे पास जनरली जो फुटेज है, जो एक्सपोज्ड फुटेज है, वो कम से कम 3 से 4 घंटे का होता है मिनिमम। उसको हम कट करके कहानी के हिसाब से हम उसमें करके और उसको 2 घंटे की फिल्म पे ले आते हैं। वो एडिट कंप्लीट होता है और एडिट के बाद जो है फिर बाकी का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होता है। सो एडिट जनरली इज द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन आफ्टर द शूट, व्हिच वी डू इन आवर स्टूडियो। एडिट होने के बाद जो पैरेलली जो काम शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है डबिंग। जो चीजें हम शूट करते हैं, शूट करने के समय पे नॉर्मली अगर हमने सिंक साउंड नहीं किया है
तो कैमरा जो साउंड रिकॉर्ड करता है वो सिर्फ रफ पायलट साउंड होता है. So actors have to come to the recording studio to dub the dialogues once again in the same feel and in the in the same tempo, in the same lip sync भी match करना होता है उनको. It's a little difficult thing for the actors. They are trained accordingly. So वो जब स्टूडियो में आते हैं, वो डबिंग होती है. डबिंग के साथ साथ में अब जो भी जहाँ पे भी हम शूट कर रहे होते हैं वहाँ का एक एम्बियंट साउंड होता है. जैसे अगर हम लोग यहाँ इस कमरे में बात करें तो इस कमरे का अपने एक एम्बियंट साउंड है. सो साउंड डिजाइनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन होता है साउंड में, साउंड डिजाइनर. ही हैज टू रिकॉर्ड द एम्बियंट साउंड. He goes on the location shoot location and he records all the ambient sound while they are shooting. So to match the the sound effects and to match the ambient sound with the scene to make it more real. So वो चीजें होती हैं. इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीशियन होता है जो हमारे यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कम जिसको लोग जानते हैं, वो होता है फॉली टेक्नीशियन. किसी ने दरवाजा खोला, उस दरवाजे की आवाज हमको रिकॉर्ड करनी होती है. किसी ने पेपर वेट टेबल पे रखा, उसकी आवाज रिकॉर्ड करनी होती है. किसी ने किसी को चाकू मारा, उसका साउंड रिकॉर्ड करना होता है. देयर आर डिवाइसेस, जैसे किसी को चाकू मारना है, उसका साउंड हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं. किसी कद्दू में चाकू मार के उसका साउंड रिकॉर्ड करते हैं. इट साउंड्स द सेम जैसे किसी के पेट में चाकू घुसेड़ा हो. अगर कोई पानी में तैर रहा है और वो डूब रहा है और हाथ पांव मार रहा है, वो साउंड हमको रिकॉर्ड करना होता है. तो हम लोग एक छोटे से बाल्टी में पानी भर के और उसको उसमें हाथ डाल के जो टेक्नीशियन है वो हिलाता है एंड वी रिकॉर्ड दैट साउंड. सो इट्स अ प्रोसेस. एक फिल्म की फॉली में 150 से 200 घंटे का टाइम लगता है. एक फिल्म की एसएफएक्स में, जिसको मैंने एम्बियंट साउंड कहा, उसको रिकॉर्ड करने में 150 से 200 घंटे का टाइम लगता है. ये सारे प्रोसेस जब चल रहे होते हैं, उसी समय बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोरर जो है, ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोरर जो है, वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा होता है फॉर एवरी सीन, फॉर एवरी दे हैव टू अंडरलाइन द डायलॉग्स. बैकग्राउंड की ट्रेनिंग में हम लोगों को एक बात कही जाती थी, जो स्टिल आई रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. इट वाज सेड बाय आवर प्रोफेसर कि आपने अगर सेम क्लोजअप एक आदमी के चेहरे का रखा है विजुअल में, अगर आप उसका म्यूजिक चेंज अलग बजा दें तो वो लगेगा किसी की मैयत में शामिल हो रहा है. और सेम क्लोजअप में अगर आपने म्यूजिक चेंज कर दिया तो वो लगेगा किसी की शादी अटेंड कर रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑडियो विजुअल थिंग. सो साथ साथ में फिर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है. सो फॉली, एसएफएक्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, ये तीनों चीजें साउंड की वो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जिनके होने के बगैर हम लोग प्रीमिक्स स्टेज तक नहीं जाते. ये सारी चीजें हो जाए फिर डायलॉग जो है वो रिकॉर्ड करके आ जाता है. अगर हमने सिंक साउंड किया है, फिल्म को सिंक साउंड किया है, सिंक साउंड से मेरा मतलब होता है आजकल लोग समय बचाने के लिए, सो दैट एक्टर्स को शूट के बाद दोबारा ना बुलाना पड़े. एक्टर्स जो है वो सबसे बिजी प्रजाति है हमारी पूरी इसमें 150-200 लोगों की टीम में. सबसे ज्यादा बिजी लोग जो है वो एक्टर्स होते हैं. सो अगर शूट पे उन्होंने 100 दिन टाइम दिया है तो उनको डबिंग के टाइम पे भी 100 दिन टाइम देना पड़ेगा. टू अवॉइड दैट मैक्सिमम लोग आजकल जो है सिंक साउंड करने लगे हैं. एक तो वजह ये भी है, दूसरी वजह ये भी होती है कि वो बहुत रियल मिलता है आपको शूट के टाइम पे. जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जब आप फाइट कर रहे हैं, जब आप चिल्ला रहे हैं, उस समय पे जो डायलॉग डिलीवरी आपकी होती है, वो डायलॉग डिलीवरी जो है वो ज्यादा रियल लगती है अगर आपने उसी समय सिंक साउंड के टाइम पे उसको कैप्चर कर लिया. तो सिंक साउंड होने के बाद भी अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 25 to 30% का पैचवर्क निकलता है. पैचवर्क से मेरा मतलब ये है कि जो आपने वहां साउंड रिकॉर्ड किया सिंक साउंड, उसमें जब आप शूट कर रहे थे तब कोई गाड़ी गुजर गई, कोई एरोप्लेन गुजर गया, पीछे से कोई एक अनवांटेड नॉइज आ गया जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, जिसको आप मना नहीं कर सकते थे, और उसको शॉर्ट हो गया. तो उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा उन डायलॉग्स को क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट गेट्स. उसके बाद भी ना हो तो फिर हम लोग उसको पैचवर्क कहते हैं कि भाई ये डायलॉग इस एक्टर को दोबारा बुलाना पड़ेगा
रिकॉर्ड करने के लिए, डब करने के लिए। वो एक्टर आता है फिर डब करता है। इस डबिंग की प्रोसेस के बाद फिर हमारे साउंड के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। देन साउंड डिजाइनर एंड डायरेक्टर सिट्स टुगेदर एंड स्टार्ट्स डिजाइनिंग द साउंड ऑफ द होल फिल्म। साउंड में अभी बहुत सारे हमारे पास लेयर्स आ गए। फॉली का एक लेयर है, डायलॉग्स के लेयर्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के 150 से 200 लेयर्स हैं, एसएफएक्स के 100 से 150 लेयर्स हैं। इन सब चीजों को मिक्स करके एज पर द aesthetics of the visual, as per the aesthetic of the story, they try to design the sound. डिजाइन से मतलब यह है कि जैसे अगर हम लोग डॉल्बी थिएटर, हम सब लोगों ने विजिट किया होगा, फिल्में देखी हैं, तो ये साउंड जो एक एरोप्लेन अगर ऊपर से गुजर रहा था तो इस साउंड को हमको पैन करके ऊपर वाले स्पीकर में डालना है। अगर एक कैरेक्टर स्क्रीन के राइट में बोल रहा था तो वो साउंड्स को हम लोग कोशिश करते हैं सेंटर और राइट में पैन करें, so that it sounds natural while watching the screen. It looks natural, it sounds natural. इस पूरे प्रोसेस में 1-2 घंटे की फिल्म में अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 घंटे जाते हैं मिनिमम। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, then we go for the final mix of the sound in the bigger room, which is Dolby certified or Dolby Atmos certified. नॉर्मली एक फिल्म की फाइनल मिक्स में 200 से 300 घंटे का टाइम लगता है। बड़ी फिल्मों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें ज्यादा वीएफएक्स है, ज्यादा इफेक्ट्स का काम है। जैसे जीरो हमने मिक्स किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, इट टुक approximately 650 hours to mix the film. थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी, वीएफएक्स की फिल्म थी, साउंड की बहुत माइन्यूट चीजें थी। सो इसके बाद ये साउंड का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद। मींस डबिंग, फॉली, एसएफएक्स, डबिंग पैचवर्क, डायलॉग क्लीनअप, साउंड डिजाइनिंग, प्रीमिक्स एंड फाइनल मिक्स। देन वी गेट अ फाइल, जो साउंड की कंप्लीट फाइल हमारे पास आ जाती है, जो एक्सएमएफ फाइल, एक्सएमएफ उसमें होती है, फाइल होती है। एट द सेम टाइम विजुअल साइड में हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। After the edit is complete, we go for this DI, which is digital intermediate. पुराने जमाने में ये चीज कलर करेक्शन कही जाती थी। जब हम लोग नेगेटिव पे शूट करते थे तब इसको कलर करेक्शन कहा जाता था। बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हो गया, धूप ज्यादा थी उसमें, या धूप कम थी उसमें, ब्राइटनेस कम हो गया किसी सीन में, विजुअल की अपनी डिमांड होती थी, उसके हिसाब से चेहरे पे कोई लाइट ज्यादा आ गई, लाइट ठीक से नहीं लिया एक्टर ने, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग पहले कलर करेक्शन करते थे। आज डिजिटल में वो डिजिटल इंटरमीडिएट कहा जाता है, डीआई कहा जाता है। मेरा ख्याल है इंडिया में अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट डीआई नहीं सिखा रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट आप लोगों के इंस्टीट्यूट के बारे में। हम लोग एफटीआईए में हमारी फैकल्टी जाती हैं पढ़ाने यहाँ से, वहाँ पे भी डीआई नहीं सिखाया जा रहा है, वहाँ पे भी वीएफएक्स एंड एनिमेशन नहीं सिखाया जा रहा है अभी तक भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, जहाँ सिर्फ कैमरा और एडिटिंग आई है। साउंड जब से डिजिटल हुआ है, डिजिटल साउंड वो लोग सिखा रहे हैं, बट डीआई कोई नहीं सिखा रहा है। आज भी हिंदुस्तान में अगर किसी को बहुत हाई एंड वीएफएक्स एंड डीआई की ट्रेनिंग लेनी है तो लोग न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल जा रहे हैं, 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च करके वहां जा रहे हैं सीखने के लिए। बहुत सारे लोग हमारी जानकारी में भी वहाँ 3 साल के डिग्री कोर्स करके आ रहे हैं। हम लोग जब भी कभी इस तरह की सेशंस में या जब भी मुलाकात होती है टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले लोगों से, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अब जब डिजिटल हो गया है सब कुछ, एनालॉग नहीं होने वाला है अब दोबारा, अब नेगेटिव में नहीं होगा, then we have to be compatible with the ongoing system, with the ongoing things. But nobody is taking notice. Even बॉम्बे में बेसिली मूड्स और दूसरे जो एक आध इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग भी नहीं सिखा रहे, डीआई को नहीं सिखा रहा। आज अगर इंडिया में किसी को डीआई सीखना है, उसको किसी एक टेक्नीशियन को 2 साल तक असिस्ट करना है चेयर के पीछे खड़े होके, फिर वो शायद सीख पाएगा। ये है गुरुकुल परंपरा चल रही है अभी तक, वो भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से। तो आई थिंक ये मेरा अपनी तरफ से सजेशन होगा कि आप लोग अपने यहाँ डीआई ऐड करें जरूर। दूसरी बात,
DI में अब दूसरा एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है डिजिटल कैप्चरिंग की वजह से, मींस डिजिटल कैमरा यूज होने की वजह से। हम लोग, आप लोगों ने भी कई बार ये कहानियों की तरह सुना होगा। हम लोग एक्सपीरियंस करते थे पहले, जब 435 535 कैमरा से शूट करते थे, हम लोग नेगेटिव पे शूट करते थे। तो उस समय ना एक शॉट जो जो जिसको जो शूट करने में 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम लगता था, उसके लिए लाइटिंग पूरे दिन होती थी, और ऐसा लगता था कितना वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। विनोद प्रधान जैसे वेटरन कैमरामैन जो है 8-8 10-10 घंटे लाइटिंग करते थे, एंड फिर एक शॉट लिया जाता था। ये मैं कह रहा हूँ 1942 लव स्टोरी के जमाने की बात। अब वो बात नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं रही है। अब DI जो है वो आपको इतना कुछ इतना फैसिलिटेट करता है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको इतनी कमाल की फैसिलिटी देता है कि अगर आपको चेहरे के साइड में लाइट चाहिए था, तो आपको चेहरे के साइड में सोर्स में लाइट करने की जरूरत नहीं है। आप सोर्स लाइट पे, आप नॉर्मल लाइट पे शूट करके आओ, हम जहां लाइट डालना है वहां डाल लेंगे DI। सो इट इज सेविंग योर टाइम ऑल्सो। दूसरा, जब हम लोग नेगेटिव पे शूट करते थे, तो उसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम एक्सपोज कितना करें। नेगेटिव बहुत महंगा होता था। कोडैक के और फूजी के जो जो डब्बे आते थे, दे वर सो कॉस्टली। तो अब वो बात नहीं रही। उस समय ये होता था कि भाई कितने डब्बे एक्सपोज करेंगे, उतना महंगा होगा, उतनी देर एडिट में लगेगी, और फिर वो एक रील एक एक थिएटर तक जो जाता था नेगेटिव, वो भी बहुत महंगा था। डिजिटल में अब ये है कि आपको हार्ड डिस्क पे जो NG शॉट्स हैं डिलीट करते जाओ, आप यू कैन रीराइट ऑन द सेम थिंग। तो ये बहुत आसानी है, ये सारी सुविधाएं हैं, बहुत आसान हो गया है। लेकिन मैं कुछ जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने एनालॉग से डिजिटल तक का सफर साउंड में भी देखा है, एनालॉग से डिजिटल तक का सफर विजुअल में भी देखा है। अब मैं कुछ ऐसी बातों पे बात करना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो ये है कि हम लोग जब का या लाइव दूसरे म्यूजिशियंस का जो साउंड आता था, वो डिजिटल में नहीं आ रहा है। हम लोग कहते हैं ना, वो सोलफुलनेस खत्म हो गई साउंड से। वो सोल कहाँ चला गया? वो सोल सिर्फ कंपोजर्स का ही नहीं था। डेफिनेटली कंपोजर्स वर डिफरेंट, डेफिनेटली राइटिंग वाज डिफरेंट, पोएट्री कमाल की थी, अलग थी, वो सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा फर्क जो टेक्निकल था, आप में से कुछ लोग जो साउंड को में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ज्यादा एक्सप्लोर करते होंगे, आप किसी पुराने गाने का टेप चला के उसके साथ तबला बजाने की कोशिश करें, टेम्पो मैच नहीं करेगा, बिकॉज वो क्लिक पे रिकॉर्ड ही नहीं होता था। एक जमाने में लाइव म्यूजिशियंस जो है, सो वो जो वो जो एंटरटेनमेंट में इम्परफेक्शन का जो रोल था, वो बिल्कुल हट गया है। वी आर गोइंग सो क्लोज टू द परफेक्शन कि अब वो जो सोलफुलनेस है वो जाने लगा है। जब आप खुद तबला प्ले करेंगे तो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, उसका टेम्पो इन अ नेचुरल थिंग वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। जो जब आप क्लिक पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं डिजिटल, इट डजंट हैपन। आप क्लिक में कट टू कट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो वो जो नेचुरल झोल था ना, वो जो नेचुरल रिदम था, उसका जो स्ट्रिंग था, वो स्ट्रिंग वी हैव लॉस्ट समवेयर, वो हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। ये एक सबसे बड़ी वजह है, जो नहीं ठीक लग रहा है, वो जो सोलफुलनेस चली गई है। मैं डिजिटल का आदमी हूँ, फिर भी बड़ी अजीब सी बात है कि मैं एनालॉग की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर हम लोग एनालॉग के उस सोलफुलनेस को, उस रियलिटी को डिजिटल में मेंटेन कर पाए विथ आवर माइंडसेट, तो हमारी जीत होगी। तब हम लोग जो करना चाहते थे, सी सुविधाएं मतलब ये वैसी बात हो गई कि अब हमें नंबर से याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने मोबाइल पे फोन बुक है हमारे। एक जमाना था जो हम सबको 40-50 नंबर से याद रहते थे। तो वो जो टेक्नोलॉजी आई है, इसने हमको जो सुविधाएं दी हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आदतें छूट रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम खो भी रहे हैं क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन उन विद्यार्थियों का, उन स्टूडेंट्स का बहुत जरूरी है, जिनको इस वर्ल्ड में आके किसी कहानी का हिस्सा बनना है। हर वो आदमी जो आपके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, हर वो आदमी जो हमारे यहाँ आके काम करता है आपके यहाँ से निकल के, वो किसी न किसी कहानी के कहने में, किसी स्टोरी टेलिंग में हिस्सेदार है,
और उसकी जितनी शिद्दत, उसकी जितनी लगन, उसकी जितनी सोलफुलनेस, जितनी प्योरिटी होती है, वो उस पूरी ओवरऑल ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हम लोग उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन सब चीजों को जरूर बताएं कि अगर अगर हमने एक साउंड रिकॉर्डिंग सिखाया तो साउंड रिकॉर्डिंग में क्या ऐसा मिस हो गया, वो क्या बात थी जो जो रह गई, जिससे वो सोलफुल होने से रह गया। सो ये पूरा एक प्रोसेस फ्लो मैंने बताया। इनफैक्ट मैं ये चाहूंगा कि इस बीच बीच में आप लोग कुछ सवाल मिल लेते जाएं, तो मुझे एक वो लिंक मिलता जाएगा टू टू टॉक फर्दर। प्रवीण जी, सवाल काफी हैं। अगर आप जी, कंक्लूड करें फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं इसके बाद मैं आप लोगों से सवाल चाहूंगा कि आप लोग सवाल लेना शुरू करें, बिकॉज ठीक है। सवालों से फिर बात निकलेगी तो और थोड़ा हम हाँ, लोग और थोड़ा बातें करें। हो जाएगी। जी अच्छा, सिद्धार्थ सर, with your permission, I think Q&A open कर सकते हैं so that it प्लीज becomes more प्लीज engaging because प्लीज प्लीज ठीक है। Sir, I absolutely agree with you because there's a friend of mine who was looking for DI and he found a person in Noida, one person only all over India who was doing DI. He spent a lot on that. So your session is very interesting. I think we should open for Q&A. Praveen sir, I would like you to please carry forward the session. Thank you. जी सर, पहला सवाल है, डॉक्टर अमित चन्ना जानना चाहते हैं, इज क्रिएटिविटी is being compromised because of excess technical intervention in films? Yes, it is getting compromised. So basically क्या होता है अमित जी, मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना वर्ल्ड में, तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है ना, वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो वेस्ट करता है बहुत ज्यादा। हमारे साथ अभी वही बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूंगा, थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं शुरू में, तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रामर देख रहे होते हैं। जब वो हमारी सोल में फिट हो जाता है, जब हम ड्राइव करना सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है, कहाँ से लेना है। जब हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज फिट हो जाती है, तब हम फ्रीली ड्राइव कर रहे होते हैं। नोबडी टेल्स अस कि राइट कहाँ से लेना है, लेफ्ट कहाँ से लेना है। यही टेक्नोलॉजी के साथ भी हो रहा है, क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दूसरा सवाल है सर, फिल्म प्रोडक्शन में 3 इडियट्स को एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है कि उसमें आमिर खान अपने उम्र से ज़्यादा दिख रहे थे जब शूट हुई थी, और उनको स्टोरी लाइन ये था कि उनको एक कॉलेज बॉय दिखाना था, जिसके लिए फ्रेम बाय फ्रेम उस पर काम किया गया था, और हॉलीवुड से भी लोग आकर के काम किए थे। इस पर कुछ आप प्रकाश डालें। जी, ये कई फिल्मों में हो चुका है। उसमें भी हुआ था अपना, इसमें तो हुआ ही 3 इडियट में, और दबंग में हम लोग ने दबंग 3 किया लास्ट टाइम, तो उस समय उनका डबल चिन आ रहा था सलमान साहब का, तो वो हम लोगों ने एक फ्रेम पे जाके उसको कट किया था। रंगून हमने किया था, उस टाइम पे कंगना का जो फेस था उसमें बहुत सारे पैचेस थे, दांत थे, लुकिंग ओल्डर, हम लोगों ने उसको करेक्ट किया था। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CGI एंड DI बोथ। हम लोग उसमें आप समझे 80% काम जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में करते हैं, मास्किंग के थ्रू, और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इट्स नॉट ओनली वन सॉफ्टवेयर और वन वे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी आइडियाज, सो मेनी थिंग्स, और फिर वो करके हम लोग VFX में, एंड देन वी गो इन द DI रूम टू स्मूथन इट अप। जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक सिनेमा आपके यहाँ आपके प्रोडक्शन हाउस से बनी, उसको एडिट हुई, उसमें दिन की शूटिंग को रात दिखाया गया था। वो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस पे जरा आप माने हाउ यू वेर एबल टू कन्वर्ट इट। नॉर्मली क्या है, अक्षय सर रात में शूट नहीं करते, 7 बजे के बाद शूट नहीं करते, है ना। कोई भी डायरेक्टर हो, रात को शूट करना प्रेफर नहीं करते। और ये फिल्म आधे से ज्यादा 80% जो है वो रात में थी, तो हमको स्क्रिप्ट के टाइम पे ही इन्वॉल्व किया गया था। सो शूट करने टाइम पे हम लोग ये ध्यान हमने रखने को कहा था
one of our VFX supervisor was there on the shoot. So उसमें पहला ध्यान ये रखना होता है कि बहुत ब्राइट में लाइट में शूट मत करो आप, है ना। तो जो भी सीन्स आपको रात वाले दिखाने हैं और दिन में शूट करना पड़ रहा है, वो सनसेट के बाद शूट करें या अगेंस्ट द सनलाइट शूट करें आप। पहला ध्यान वो रखना होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको आके डे फॉर नाइट एक प्रोसेस होता है, डे फॉर नाइट कन्वर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इन VFX, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, और फिर उसका DI में फाइनल टचअप। जी, सलोनी भारद्वाज जी जानना चाहती हैं कि हाउ डू यू मैनेज DI फॉर पोस्ट हाउस? मैनेज DI फॉर पोस्ट हाउस, आप what is the cost and how do you manage, because there are very few people in India who are, according to you also, who are doing DI. Yeah. And one of my partners, he's from the visual side. He's a DI colorist, and we trained. And we, in the beginning, when we started this studio in 2015, 16 March actually. So हमने वर्ल्ड की रिनाउंड कलरिस्ट है वेनेसा टेलर, टॉप 3 में है वर्ल्ड की, उनको हमने यहाँ इनवाइट किया था इंडिया में टू सेट अप द वर्कफ्लो फॉर आवर स्टूडियो। इनफैक्ट अगर कोई हमसे कहता है 3 लाइन में आप बताएं व्हाट इज द आपकी सक्सेस का राज क्या है, इतनी जल्दी कैसे आप लोगों ने इतनी सारी बड़ी फिल्में करना शुरू कर दिया, उसमें एक लाइन ये भी आती है कि अगर हमने वेनेसा टेलर को ना बुलाया होता यहाँ, तो हमारी पूरी टीम के पास जो प्रोसेस फ्लो का इंफॉर्मेशन है दूसरे स्टूडियोज को थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, वो नहीं हो पाता। सो डेफिनेटली, और हमने कुछ लोगों को बीच बीच में यहाँ से ट्रेन होने के लिए भेजते भी रहे, हम लोग बाहर लेबनान भेजते रहे, लंदन भेजते, अमेरिका। अभी हमारा एक बंदा है जो न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में कुछ एडवांस कोर्सेज के लिए गया हुआ है, यहाँ आके हम लोग एक बंदा जाके सीख के आता और यहाँ सबको ट्रेन करता है। बट नाउ वी आर, हम लोग, जो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने यही काम शुरू किया है। जिस बात की शिकायत में लोगों से कर रहा हूँ, तो हमारे अपने जमीर ने पूछा था कि फिर आप क्यों नहीं सिखाते, तो यस वी हैव स्टार्टेड स्ट्रीमिंग। हम लोगों ने यहाँ से ब्रॉडकास्ट शुरू किया है फॉर FTI, फॉर डिज्नी मूव्स, फॉर डिफरेंट कॉलेजेस इन आवर सराउंडिंग। जो लोग भी करना चाहते हैं कि भाई आप अपने यहाँ एक रूम बनवा लीजिए, वहां पे एक स्क्रीन लगा लीजिए, हम यहाँ से सिखाएंगे, और जब भी आप चाहेंगे महीने में एक बार हमारा फैकल्टी यहाँ से ट्रैवल कर लेगा, वहां उनको थोड़ा प्रैक्टिकल बताने के लिए हम उनको बुलाते भी रहेंगे अपने स्टूडियो में, सो दैट दे कम एंड दे सी द प्रैक्टिकल वर्क, काम कैसे हो रहा है। जी सर, एक टेक्निकल सवाल है, कलर पे सवाल किया गया है। कलर करेक्शन जो है, लाइट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कलर कर। सवाल ये है कि जो एमेच्योर, जो न्यू कमर, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो इन चीजों पर कैसे ध्यान दें? एक सवाल ये। दूसरा सवाल डॉक्टर अंकित शर्मा पूछ रहे हैं कि प्लीज इलैबोरेट ऑन डिफरेंस बिटवीन CC और कलर ग्रेडिंग। हाँ, पहला तो कि वो कैसे ध्यान दें, इसका मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो सीखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी, और फिर एमेच्योर से मैच्योर हो जाएंगे। जो पहला सवाल था आपका, सो देयर इज नो अदर वे आउट, वो सीखना ही पड़ेगा। और वो धीरे धीरे शुरू में लगेगा कि हमने तो ठीक ही किया था लेकिन गलत रहा। यही फर्क होता है एक एक्सपर्ट मैच्योर टेक्नीशियन में भी और एक बिल्कुल जो बिगिनर है। दैट्स हाउ वी लर्न। हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो म्यूजिक में गलतियां करते थे, तब लगता था बहुत कमाल किया हमने। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अपनी चीजें गलत लगने लगती थी, ठीक नहीं लगती थी। जो दूसरा कलर करेक्शन एंड DI, उसमें क्या होता था, तब वो प्रोसेस था जब हम लोग रिवर्स टेलीसीनिंग करके उसको डिजिटाइज करके फिर एक फ्रेम पे कलर करेक्शन करते थे। ऑन एनालॉग सिस्टम था कलर करेक्शन का, मशीन और वो सब कुछ डिफरेंट था। रिजल्टेंट सेम है, प्रोसेस दोनों का अलग था। एनालॉग का प्रोसेस जैसे अलग है और डिजिटल का प्रोसेस अलग है। अब उसको कहा गया डिजिटल इंटरमीडिएट, नाम का फर्क है। आउटपुट और जो टारगेट है टू अचीव थ्रू कलर करेक्शन और DI इज द सेम। जी, अगला सवाल है सर, you have been largely given example of technology in mainstream cinema. Is it being used in low budget art cinema also? Yes. आर्ट सिनेमा और लो सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा है, वो टेक्नीशियन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता।
2 घंटे की फिल्म 2 घंटे की होती है। अब कोई पोस्ट हाउस अफोर्ड कर पा रहा है और कोई छोटा सेटअप अफोर्ड कर पा रहा है, वहां उसको छोटा टेक्नीशियन मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है। वरना हमारे लिए 2 घंटे की फिल्म में बहुत बड़ा स्टार को दिख रहा है या बिल्कुल न्यूकमर दिख रहा है, इट्स अमाउंट द सेम फॉर अस। हमारे लिए तो सेम टाइमिंग, सेम सब कुछ है। जी, अगला सवाल सर, सलोनी जानना चाहती है कि जो पोस्ट कोविड इन्वायरमेंट में जी जो वर्किंग इन्वायरमेंट जो है, ये कैसे अफेक्ट किया है और टेक्नोलॉजिकली कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं? इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ने सफर किया है, कुछ डिपार्टमेंट्स मैनेज कर पाए। जैसे वीएफएक्स डिपार्टमेंट जो है, उसमें एक एक डेस्कटॉप सबके पास होता है। सो शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो हमको लगा 15 दिन के लिए ऐसा है, 20 दिन के लिए। देन वी स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, ये लंबा चलेगा बहुत। फिर हमने एक एक सिस्टम सबके घर पे भिजवा दिया, और सर्वर मैंने, मेरे पार्टनर ने, जो टेक्नीशियन है, उन्होंने अपने घर पे रख लिया, और हम लोग वहां से अपलोड करके एंड देन वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रेम टू फ्रेम एंड फुटेज। लेकिन साउंड में और डीआई में नहीं हो पाया। मैं आपको बता रहा हूँ, सारेगामा वालों की एक फिल्म थी, उस समय उनको लॉकडाउन के टाइम पे साउंड करना था। वी कुड नॉट डू इट बिकॉज़ लीगली अलाउड नहीं था। यहाँ बीएमसी बहुत स्ट्रिक्ट थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बॉम्बे की। वी कुड नॉट डू इट बिकॉज़ जो स्टूडियो एनवायरनमेंट है वो आप बड़ा घर पे नहीं ले जा सकते। मतलब डीआई रूम आप हमारे यहाँ का देखेंगे, इट्स लाइक अ स्मॉल सिनेमा हॉल, जहाँ एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ है, बिग साइज, जितना बड़ा थिएटर में होता है, तो उसको हम घर पे नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोगों ने बहुत सफर किया है। इनफैक्ट अभी भी बॉम्बे में तो अभी खुला है, मैं यहाँ 4 बजे तक अलाउड था, 15-20 दिन, 1 महीने पहले खुला है। 4 बजे के बाद हम काम नहीं कर पा रहे थे। सेम विद साउंड ऑल्सो, जो घर पे बैठ के काम हो सकता था वो तो कर लिया, लेकिन जो पैनिंग आपको देखनी है, जो प्रोजेक्टर पे और बड़े स्पीकर्स पे आके जहाँ 60 स्पीकर्स लगे हुए, वैसे वाले एनवायरनमेंट करना, यू कांट क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन योर हाउस। सो दैट बिकेम एन इशू फॉर अस। जी, शंभू साहू जानना चाहते हैं, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज कट सर्टेन स्किल्ड लेबर इन फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हिच आर दोस पर्टिकुलर स्किल्स? मतलब बहुत स्ट्रेट अगर आंसर दें तो हाँ, कुछ लोग तो जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया अपने, तो वो काम सीख नहीं पाए। बट उसको वैसे नहीं लेना चाहिए, हमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब अगर मुझे मोबाइल चलाना या जूम कॉल पे बात करना नहीं आता और मैं कहूँ मैं बेकार हो गया, तो वो उसको वैसे एक्सक्यूज जैसा लगेगा। वो हमको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। जी, एक अंतिम सवाल है सर जी। बजट के मामले में बॉलीवुड बड़ी बड़ी बजट की मूवीज बनाती है, लेकिन जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो टचअप होता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन जो वर्क होता है, जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उसमें अभी भी हम साउथ की इंडस्ट्री से पीछे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता। हम साउथ वालों से पीछे हैं सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट बनाने में। बाकी इफेक्ट्स में हम वी आर केपेबल टू गिव। वो लोग उतने माइन्यूट नहीं है, उतने वो थोड़े लाउड हैं। उनके यहाँ की ऑडियंस के हिसाब से वो थोड़े लाउड हैं। उनका पूरा सटल नहीं है पूरा। विद ड्यू रिगार्ड, वहां से बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो हमारे यहाँ यही काम कर रहे हैं। रसूल इज वर्किंग विद आवर स्टूडियो आल्सो। सो हमारे यहाँ जो मिक्सिंग इंजीनियर हैं, अजय कुमार पीवी, पिछले 3 साल से जो जिनकी वजह से आईपा हमारे यहाँ आ रहा है, अजय कुमार पीवी, वो मलयालम वहां से है अपना। तो ये बात सही नहीं है कि वहाँ के लोग ज्यादा, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी खास स्टेट के बारे में कहें कि वहाँ के लोगों को ये नहीं आता है, ऐसा नहीं हो। जिसको जैसा माहौल मिला, वैसे हमारे शहर में शायरी और म्यूजिक का माहौल बड़ा अच्छा था, तो हमारे यहाँ से खूब सारे म्यूजिशियंस आ गए, राइटर्स खूब सारे आ गए। दूसरे शहर में शायद उनके अपने दोस्तों के सराउंडिंग में, उनके अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी कैंपस में वो माहौल नहीं रहा होगा। वो बहुत ही पर्टिकुलर बात है। इट्स नॉट अबाउट द स्टेट। हाँ, एक बात से शायद कोई कंफ्यूजन हो रहा है, जिसपे मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहाँ के लोग ज्यादा बड़ी फिल्में बना सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा बड़ा कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्शन में एंड पोस्ट प्रोडक्शन में।
बिकॉज उनके यहाँ कलेक्शन ज्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ सिनेमा देखना कल्चर है, जिसपे मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो मैं अगला 15 मिनट ले लूंगा। इस बात की मुझे बहुत शिकायत है कि बाकी जगहों पे सबका रेट बढ़ता जा रहा है, यहाँ जो बॉलीवुड जो हिंदी सेक्टर है जो सिनेमा का, वहां पे सब कुछ कम होता जा रहा है। यहाँ पे अब मैं आपको एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स बताऊं आप लोगों से कि जो व्यूअर्स रेशियो कहते हैं ना, आउट ऑफ 100 हिंदी सिनेमा देखने वाले लोगों का हमारे एरिया में, हमारे एरिया का मेरा मतलब है अदर देन साउथ, अदर देन 5 लैंग्वेजेस एंड स्टेट्स, 19% व्यूअरशिप है, और वो व्यूअरशिप रेशियो साउथ में 84% है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ के जो बड़े मेकर्स हैं, with due regard to their work and this thing credibility, सर ये लोग ना 900 रुपए की टिकट बेच के ना फ्राइडे सैटरडे संडे में सब कुछ कर लेना चाहते हैं, है ना। घबराहट है अंदर कि पता नहीं मंडे लोग आएंगे कि नहीं देखेंगे। साउथ में एक जैसे MRTP एक्ट लागू होता है ना, तो वहां पे एक रेट कंट्रोल उनका क्लॉज है उनके एसोसिएशन की तरफ से। आप वहां पे 160 रुपए से ज्यादा की टिकट बेच ही नहीं सकते। अगर आप बेचते हैं तो आपका थिएटर कुछ स्टार ग्रेड थिएटर होना चाहिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का है। यहाँ पे जो वहाँ 180 160 रुपए की टिकट है, हमारे यहाँ 500 रुपए की मिलती है। तो हम लोगों ने जो जब हम जिस मीडियम में काम करते हैं, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, प्रवीण जी, सिद्धार्थ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको ना इसको न्यूज़पेपर बना देना पड़ेगा। हमको इसको सर्कुलेशन इतना बढ़ाना पड़ेगा, सर्कुलेशन इसकी ताकत होनी चाहिए। हम कहाँ 5 लोगों से अपने पैसे हजार लेके सिमटने में लगे हुए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी खुद अकेला सोच रहा है अपने बारे में, वो इसको इंडस्ट्री की तरह ले ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो दिख रहा है ना कि साउथ वाले लोग ज्यादा सक्षम है, भाई वो 800 करोड़ की जब फिल्म बनाएंगे तो 150 करोड़ खर्च करेंगे ना VFX पे, क्योंकि उनके 800 करोड़ की फिल्म रिकवर कर सकती है। आप सोचिए एक हॉलीवुड की फिल्म लाइफ ऑफ पाई हमारे यहाँ से आके 500 करोड़ रुपए कमा के जाती है। उनका मार्केट शेयर जो है हमारे मार्केट में, हमारे हिंदी सिनेमा का शेयर से कम है, मार्केट शेयर ज्यादा है उनका, हॉलीवुड वालों का। जी सर, अगला सवाल इसी का एक्सटेंशन था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की जब हम कंपैरिजन करते हैं, वहां कहाँ कमी पाते हैं आप? बॉलीवुड किन चीजों में कम है हॉलीवुड से? मार्केट सर, मार्केट। आप फर्ज कीजिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो सिर्फ नोएडा में बिकता है, तो हमको उसके प्रचार प्रसार के लिए और उसके बनाने की क्वालिटी में भी फर्क आएगा। जाहिर है खरीदार कम है। जिनका मार्केट वर्ल्ड है, उन्होंने वर्ल्ड मार्केट एक्सप्लोर किया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर आउटपुट क्वालिटी। और कंटेंट क्वालिटी पे तो मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि हमसे ज्यादा किस्सा कोई कौन जानता है दुनिया में। हिंदुस्तानियों से ज्यादा कहानियां किसको आती है? हम उन कहानियों को कह नहीं पा रहे हैं। अब जो ये नया जनरेशन हो रहा है ना, जिसको अपनी कहानी खुद शूट करनी आती है, खुद उसका बैकग्राउंड म्यूजिक करना आता है, खुद मोबाइल पे एडिट करना आता है, ये जनरेशन जब इस नई टेक्नोलॉजी के और से बाहर निकल जाएगा ना, तब वो वर्ल्ड क्लास सिनेमा प्रोड्यूस करेगा। ये हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने सब सवालों का जवाब दिया। बैक टू यू सर। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था जो आप लोगों की जानकारी के लिए, हम लोग ना पोस्ट हाउस एक चैरिटी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। If you allow me to say that, so I would like to say that. फिर मैं इसकी डिटेल्स भेजूंगा। हम लोग इस कोविड सिचुएशन में, बिकॉज हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस के साथ एज ए फैकल्टी कनेक्टेड हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, बच्चे जो है फीस नहीं दे पा रहे बिकॉज सबके अपने काम बंद हैं। तो हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इस तरह का किया है जिसमें एक NBFC इंटरेस्ट फ्री लोन देता है पेरेंट्स को, एंड आपको कॉलेज को 10% डिस्काउंट बोल के और आपको 100% पेमेंट कर देता है पूरे साल का एक बार। जैसे सपोज 100 रुपए अगर आपकी फीस है पूरे साल की, तो वो आपको कहता है सर आप 90 रुपए में कंसीडर कीजिए, मैं आपको एक साथ पे कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें हम लोग इस मिशन में हम लोग काफी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी नोबल कॉज। आप लोगों के यहाँ भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस सहायता की जरूरत होगी, सो वी विल सेंड आवर पीपल देयर
दे कैन प्रोसेस इट। उनका अपना एक प्रोसेस है, उनकी अपनी चेकिंग और वो रिकॉर्ड्स वो सब चेक करते हैं। देयर इज अ बैंक जो डूइंग इट फॉर इंटरनेशनल कोई बैंक है जो लोग इसके लिए कर रहे हैं, अपना चैरिटी के तौर पे कर रहे हैं। सो एक ये चीज है, और बाकी आप लोग सारी चीजें पढ़ाएं सबको, हमारे यहाँ ट्रेन करके भेजें सो दैट ये लड़के हमारे काम के हों, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करें सिनेमा को अच्छे तरीके से। सर बहुत अच्छी पहल है आपकी, आई अपलॉज यू फॉर इट। जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट ऐसा कम ही होता है कि हम सेशन में और बहुत अच्छा फीडबैक हमें आने लग जाए, चैट पर भी, पर्सनली भी सब कह रहे हैं कि सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे साथ एक और मीडिया पर्सनालिटी है सर, पिछले 30 साल से वो मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, वो हर जगह पर उनकी नॉलेज है, और वो एक फिल्म बफ भी है। और मुझे पता है कि उनके मन में भी ये चल रहा है कि मैं कब आपसे बात करें। सर सिद्धार्थ सर, आई वेलकम यू। हमारे चेयरपर्सन हैं सिद्धार्थ सर। सर प्लीज कैरी ऑन विद दिस। देखिए, आपका जो आपने जो इतनी, मैं तो जब 10वीं पास किया था मैंने कहा कि साइंस और मैथ से पीछा किया, और ये नहीं मुझे पता था कि सिनेमा में भी ये सब इतना टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ्स ये याद जी। तो वो एक अब ये एक जो इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ लोग जो काम करते हैं जी। हम लोगों ने लास्ट ईयर हमारी पूरी फैकल्टी ने मिल करके 3 वॉल्यूम का एक काम मास कम्युनिकेशन पे शुरू किया, जो कि मास कम्युनिकेशन के हर एक विधा को वो टच करता है, वो कई सारी चीजें। और मैं आपकी थोड़ा इसको इसलिए पकड़ पा रहा था आपकी बातों को, क्योंकि मैंने उस वॉल्यूम को एडिट किया तो मुझे रमेश शर्मा जी का साउंड भी पढ़ना पड़ा इंजीनियरिंग, और वो सुनील मिश्रा जी का लाइट भी पढ़ना पड़ा, साहिल का कैमरा भी पढ़ना पड़ा। तो अन्यथा वरना मैं इन चीजों को नहीं पढ़ता, बिकॉज आई एम not a man with technological background. But yes, there is role of technology in cinema that we all are seeing. And a person like me is ruined. मैं तो बड़ा दुखी हूँ, खास करके संगीत के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जो है, मुझे बहुत बड़ा फन्ने खान बनाते लोग ए.आर. रहमान को। मैं तो ये मानता हूँ उसने ही फिनिश द सोल ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो बीच में इंटरवेंट, अब हर एक चीज कीबोर्ड ही कैसे कर देगा। एक ऑर्केस्ट्रा में सितार बजाने वाले का जो एक रोल है, या एक वायलिन बजाने वाले का जो रोल है, और अब देखिए आप, अब इस बार पता नहीं इंडियन आइडल को आपने फॉलो किया या नहीं किया। फॉलो किया मैंने। फॉलो किया। लाइव ऑर्केस्ट्रा उसके अंदर चल रहा था, और लाइव ऑर्केस्ट्रा में जब हमारे जो बच्चे हैं वो कहते थे, अच्छा प्यारेलाल इतना अच्छा वायलिन बजाते हैं, या वो फला इतना अच्छा, वो जो 3 वो सैक्सोफोन और क्लैरिनेट और ये वाले 3 जो थे कॉम्बिनेशन था वो था, तो सितार बजाने वाले भी बैठा हुआ था। Now this thing was something which was very common at one point of time. You know, the liveliness of music, because मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा बजती थी, लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और उसके कई तस्वीरें, कई फोटो हमने, और जो एक सिनेमा बनाने का जो इमेज था कि वो सत्यजीत राय अपनी गाड़ी के बोनेट में बैठकर पीछे बैठकर एक कैमरा लेके जा रहे हैं, बड़ा सा कैमरा है, 2 रिले है, जो भी डायरेक्टर का फोटो होता था वो कैमरा के बैकड्रॉप के साथ होता था। और अब हमारे यहाँ वो कैमरा छोटा सा कैमरा हो गया। तो चलिए, टेक्नोलॉजी ने कुछ अगर, लेकिन वो जो मुझे तो लगता है somehow रोमांस ऑफ सिनेमा, I may be too much of a romanticist to say this, but yes, I somehow feel, but technology has indeed, and I'm very glad that you touched this topic of soul and technology, because soul and technology, I think it's very difficult to bring the two together. और आपने ये बहुत सही बात कही कि जब वो समाहित हो जाता है, टेक्नोलॉजी जब आपके सोल में समाहित हो जाता है, तभी वो चीज निकल करके आती है। हमारे जो मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा था, जो उस वॉल्यूम का थर्ड वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर जो है, वो हमारी कलीग हैं प्रियम, उन्होंने लिखा है मल्टी स्क्रीन के ऊपर, कि मल्टी स्क्रीन न्यू लिबरलाइजेशन एंड मल्टी स्क्रीन के ऊपर। और अब जैसे अभी हम लोग जो 3-4 दिन 5 दिन से जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो अब कहीं ये भी आ रहा है कि मल्टी स्क्रीन इज गोइंग टू
their single screen lost out to multi screen and multi screen will lose out to OTT somehow. और उसका किसी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि बेल बॉटम रिलीज हुई अभी और कुछ और रिलीज हुआ और वो रिलीज हुआ, तो वो those examples were being given. तो एक तो मैं I would really want to hear from you कि क्या वो multiplexes, multi screen, और वो बात आपने भी रखी, it has become more of a fashion than watching of cinema. हम we went and watched a movie. So watching the movie is more about, I shelled out 900 rupees for watching that movie, and I had a what you call bag full of popcorn which was for 500 rupees. It has become more show of your money than your taste for cinema. Somehow this is what my feel is, and which is your grievance also कि हमारे यहाँ के culture में ये चीज आ गई. So how do we overcome that? I think COVID has given us this platform where we can watch film without. मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ सर. Can I? मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ. पहली बात तो ये है कि सिनेमा और घर बैठे देखने वाली जो चीजें, इन दोनों में एक बेसिक फर्क ये है कि वो आप जब चाहें तब अपनी स्वेच्छा से देखते हैं, जब चाहें चैनल चेंज कर लें, जब चाहें अमेज़न से नेटफ्लिक्स पे चले जाएं, जब चाहें रोक लें. वो आपके डोर स्टेप पे है, ऑन योर डिस्पोजल. सिनेमा की वो ताकत होनी चाहिए कि वो आपको इस बात के लिए बाध्य करे कि आप कपड़े पहने, जेब में 1000 रुपए रखें, रिक्शा पकड़ें, अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, सिनेमा हॉल तक पहुंच के ये चेक करें कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं. That content has to be that strong. So ये जो स्लैग पीरियड है जिसमें लग रहा है सिनेमा खत्म हो जाएगा थिएटर वाला, इसमें इनको इवॉल्व होना पड़ेगा. अगर ये ऐसी चीजें करते रहेंगे तो यही होता रहेगा. एडिट वाले और साउंड वाले क्या कर लेंगे? कहानीकारों को कहानी कहनी पड़ेगी. अरे मैं आपसे जो बात कह रहा था, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, देयर वर 3 सिनेमा हॉल्स, अल्पना, पैलेस, अम्बा, और फ्राइडे के शाम का वो बुक्ड फॉर वी स्टूडेंट्स. अगर टिकट ना दिया मैनेजर तो उसका सिनेमा तो चलेगा नहीं. ये तीनों हॉल बंद हो गए. बत्रा बंद हो गए. दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद तो नहीं हुई. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे सिनेमा तो नहीं देख रहे. ऐसा तो नहीं कि सिनेमा देखना बंद कर दिया उन्होंने या दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो गई. ये सिनेमा हॉल बंद हो गए क्योंकि उसको वो जो मॉल वाला कल्चर जो है, और विच इज अ वेरी कॉस्टली कल्चर. तो व्हाई शुड अ चाइल्ड स्पेंड जो एक लिमिटेड पॉकेट मनी पर, बड़े घर का बच्चा है जिसका बाप ने उसको फरारी दे रखा तो अलग बात है, लेकिन एक दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाला बच्चा जिसकी एक लिमिटेड पॉकेट मनी पर उसको अपना चलाना है, व्हाई शुड ही वॉच योर सिनेमा इन द सिनेमा हॉल एंड पे सो मच मनी, एंड व्हाई नॉट वॉच इट ऑन द. तो ये एक बात तो है. और आपने इनफैक्ट यू हैव नॉट सपोर्टेड द लाइन व्हिच आई वाज गिविंग कि साउथ में आपने किसी तरह से एक रेस्ट्रिक्शंस किया हुआ है कि अगर वो सिनेमा के कल्चर को, थिएटर के कल्चर को बचाना है तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब वो ऑल्दो यू आर आल्सो सेइंग कि वो आप वही बात कह रहे थे कि 3 दिन में ही सारा पैसा निकालना चाहते हैं. तो वो जो और ट्रेड वालों को तो सोचना पड़ेगा ना बॉस. ट्रेड वालों को उसको आप सिनेमा को बैलेंस शीट मत बनाइए. हाँ, डोंट मेक सिनेमा इनटू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की. वो 3 दिन में, और वो जो एक क्या नाम है उसका, जो कि बहुत बड़ा आजकल जिसका सारे वो दिखाते रहते हैं कि 20%, 30%, 40% बिजनेस कर लिया, प्रॉफिटिंग दैट फेलोज गेन. वो तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये जो कमर्शियल गिमिक्स हैं, एक तो टेक्नोलॉजी भी है और कमर्शियल गिमिक्स भी है, somehow harming the cinema. But really, Mata, I must compliment you for your such gigantic grip over the art of cinema, and और आपने जो है सो जो पता नहीं, हम में से सब कई सिनेमा के स्टूडेंट हैं यहाँ पर और पढ़ते रहे हैं. मार्टिन स्कॉर्सी का नाम भी हम लोगों ने सुना है. इसमें से कितने लोग पता नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रेटेजी तरह से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था. तो ये बात आपने बताई. नहीं, तो पहली बार उन्होंने फिल्म बनाने की सोची ही पॉदेर पंचाली देख के. उसके पहले उन्होंने सिनेमा सोचा नहीं था. ये उनकी जुबान से कही हुई बात है. हाँ, तो वही. अब ये तो है. आप जैसे वो कहते हैं कि वो जो पता नहीं फैंटम की कॉमिक्स आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी बचपन में, बाबा मोश पढ़ी, सब जानकारी होती थी.
तो इस विधा के बाबा बोस को इस कॉन्फ्रेंस में लाने का यही तो फायदा है कि ये बताएंगे कि नहीं ये भी दिस इज एब्सोल्युटली आई डोंट नो इफ एनीबॉडी रियली हैड दिस इंफॉर्मेशन, मुझे तो नहीं। हम इतना सुना हुआ है कि फेमस मैन ही उस पे सारी उनके निहिलिज्म और उनके सारी जो उनकी जितनी इज़म्स है सब पर डिस्कशन होता है, लेकिन एक रे भी है उस इज़म्स के पीछे, इस पर तो किसी ने रोशनी डालते हुए मैंने पहली बार सुना है इनके लेक्चर्स। तो आई एम दैट हैज बीन ग्रेट लर्निंग फॉर मी। और आपसे हम लोग जुड़ेंगे, आपने जो हमें ऑफर दिया है कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को आपके साथ जोड़ सकते हैं, और हाउ कैन वी, जो हमारी एक जो बहुत बड़ी समस्या भी है, और ये कोर्स और ये जो हम एफडीपी कराते हैं, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आप लोगों से सीख करके हम अपने विद्यार्थियों को इस तरह से सिखाएं कि वो आपके लिए तैयार हो पाए, इंडस्ट्री रेडी हो पाए। So not a better person than you to have talked about all this. And my pleasure, sir. Thank you so much. Thank you so much. I and my whole team would love to be part of your any venture, anything. If we can, definitely we are there. Thank you so much. I'm so grateful to you, and we'll get back to you on this. We'll get back to you on this, and I'm very sure we will, associate. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. More in real time, and and do things real time rather than this virtual interactions. Thank you so much. Thank you. Yes, Saloni. Thank you, sir. Thank you, Siddharth sir.